So, yes, good morning to one and all, and welcome back to Follow My Psychology. And this shoot, we are doing it right now, but it's going to come on day before tomorrow. Day before tomorrow, yeah. So, firstly, I would say a very happy Mental Health Day to you, Pari. It's no, I'm calling you Pari. People are going to. I'm not going to know the context behind it, but I'll tell them. So, happy World Mental Health Day. It has been like, it has been a huge day for our careers. So, it's Exactly. worth celebrating. And so, the thing is, I would say that, I have been meeting Mrs. Parito Sharma when I guess a month back, and she is a very jolly person, like a very viable person, jolly person, and I've been feeling so good to meet her. Like she is a occupational therapist, and she is amazing with children. She has done miracles, and I've seen myself in children's the way she has done miracles. I have seen children changing up to so much that the parents are like, oh, how could you do this, and you did it, and it was so amazing. So Pari, so I call her Pari. I love to call her Pari because I really I feel it very sweet to call you Pari. So it is very much a privilege, and I'm very much honored that I got a chance to get you on board and to have this discussion with you. Thank you so much for coming. Thank you so much, Ayushi, for such a wonderful introduction. Thank you and happy Mental Awareness Day, Mental Health Day. I am Dr. Paritosh Dipka Sharma, as you all know, occupational therapist based in Bangalore. I have 50 years of experience and I have done lots of certification license courses that will help my kids uh, to improve their development. I am a certified sensory integration therapist. I am a certified brain gym instructor. I am a certified oro placement therapy, motor and play skill learning, NDT, handwriting without tears, therapeutic listening program, Jolly Phonics, and I am a certified trainer of play therapy also. So all of these I have done to just help my kids other than occupational therapy. So, in occupational therapy, we basically do to improve overall development of a kid. Right. I see that. Like occupational has, as I have seen, it has not even just it's not affecting the speech, but it's even affecting the motor functions, the physical Exactly. functions, That, everything. yeah. So that's why we call it overall development of a kid. It's not a kid. It's for adults also. It's like why we are saying it's as a occupational, because Yeah. whatever is the main area of concern, we are dealing with that particular area, like with the kids. So like play, and speech and social emotional development, that is the main area of concern. So So that's you say why. the occupational therapist is generally also used in adults also. Yeah. So it's Okay. like as you know, like we work basically with the gross motor, fine motor functioning. Hmm. Uh, so if after a stroke or after a any brain damage or any paralysis, any kind of Right. disorder or condition, so we basically work according to the condition. So Right. we have to give few activities, lots of techniques to improve the gross motor and fine motor, and again visual and lots of sensory issues also we have to work. You're doing a wonderful, commendable job, Pari. It's really, really worth praising. And you have really, as a person, also, I have seen your success rate. I've seen children's being so happy with you. And I know, I've been telling you earlier that children's are like, I want to go to Pari Auntie, Pari Auntie. Children's are like, want to come to Pari Auntie. So that's so Yeah. sweet. So it's been a very good journey with the kids also. Even I like to, spend time with the kids. It's like people keep asking कि मैम आप break नहीं लेते हो, मैम आप छुट्टियां हो गई हैं, holidays, you have to go somewhere.
तो मेरे लिए तो स्पेंडिंग टाइम विद दीज किड्स कि मेरा तो दैट इज द फन टाइम, कि मैं उनकी डे टू डे प्रोग्रेस देख रही हूँ कि आज ये बच्चा ये था, कल इसने ये कर लिया, माय गॉड। सो इससे ज्यादा फन और अच्छा Exactly. एक्सपीरियंस मेरे लिए और आई कैन रिलेट टू इट इवन लाइक अगर हमने भी जैसे कि कोई टेक्निक दे दी, कोई स्ट्रेटेजी दे दी पेशेंट को, और पेशेंट को वो काम आ गई, सो इट फील्स सो गुड द नेक्स्ट डे व्हेन द पेशेंट सेज कि मैम यार मतलब नींद आ गई हमें, लाइक आई फील एग्जैक्ट ओ तुम सो गए, नाइस। yeah. Good. So the thing is, carrying on with the discussion of today, the awareness thing. Okay. So the thing is, today what's happening? Ki, what to say? Ki parents are conscious about every small thing because they are thinking that the disorders in children are increasing nowadays. Okay, so the Yeah. thing is, they are even conscious about things which are not that worth being conscious कि normal process है, लेकिन वो conscious Yeah. हो जाते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है, right? So I would, my first question is, can you tell us the red flags, like when a child is like 1 to 5 years के बीच में आप बता सकते हो कि वो रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं, जहां पे पेरेंट को सच में लगना चाहिए कि नो देयर इज समथिंग बॉदरिंग माय किड, देयर इज सम इश्यूज एंड नाउ आई हैव टू टेक एक्शन. Yeah. So again, like it's a very important and very good question. So it's first of all, it's the understanding of the developmental milestones. So Mm-hmm. what is this understanding? How we will get to know, and what is this developmental milestones? So being a new parent, अभी आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो और आपका फर्स्ट बेबी है, सो किसी को भी ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस एज में किस टाइम पे इस बच्चे को ये चीज आनी चाहिए. सो Mm-hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, अगर तो आपका सेकंड बेबी है, आराम से समझ आ जाएगा कि मेरे फर्स्ट बेबी ने इस टाइम पे ये चीज अचीव की थी, इस टाइम पे ये चीज अचीव की थी, अभी इसके टाइम पे थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये Right. अभी नहीं कर पा रहा है. तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस developmental milestones is very important. So Okay. what is this exactly developmental milestone? Hmm. So these are the skills which a kid achieve Okay. age appropriate, right? So for example, we have एक बच्चे का हम लोग लेते हैं physical development Hmm. and social emotional development, speech development. ओके, एंड इन फिजिकल डेवलपमेंट हम लोगों को देखना होता है बच्चे का ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 3 मंथ्स में उसका हेड कंट्रोल नहीं आया है, ओके, और 3 से 4 मंथ्स भी लग जाता है, इट वेरीज, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का डेवलपमेंटल फेज अलग अलग रहता है. ऐसा नहीं है कि अगर एक 3 मंथ्स के बच्चे ने 3 मंथ्स 10 डेज में वो अचीव किया है तो दूसरा बच्चा भी उतने ही टाइम पे करेगा. लेकिन यस, अगर दैट इज द फ्यू रेड फ्लैग्स कि अगर Okay. 3 to 4 मंथ में वो फर्स्ट इज दिस हेड कंट्रोल वो नहीं आया है, आपने उसको टमी के साइड पे लेटा दिया है उल्टा, और वो बच्चा अगर अपना हेड को ऊपर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर द पेरेंट. उनको समझना पड़ेगा कि ओके कुछ तो है, अभी मेरा बच्चा 3-4 मंथ्स का हो गया है, अभी तक ये चीज नहीं कर पा रहा है. देन देन अगेन 4 मंथ 5 मंथ में स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, अपना थंब डालेगा, अपना पैर का अंगूठा पकड़ के मुंह में डालता है, हाँ. अगर झूले पे बैठा हुआ है उसके हम जो झुनझुने रैटल्स लगा देते हैं, दे उसको. कीप ट्रैक, कोशिश करता है उसको एक्सप्लोर करने की, उसके Hmm. आसपास से आ रहे हैं वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है. सो दैट इज, अगर वो चीज नहीं हो रही है, अगेन इट वेरीज कि वो 1 महीना डिले हो सकता है, 2 महीना, लेकिन अगर वो चीज नहीं कर पा रहा है, देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग. देन अगेन 6 मंथ्स में बच्चा विद सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर देता है, Okay. लेकिन अभी तक बच्चा 6 मंथ्स का हो गया है, 7 मंथ्स का हो गया है, लेकिन अभी तक वो बैठ नहीं पा रहा है विदाउट सपोर्ट, विद सपोर्ट, तो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग. एंड व्हाट मैं जितना भी बात कर रही हूँ, ये सारा का सारा फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चे की, कि 6 मंथ, देन सिटिंग आ गया है, सिटिंग थोड़ा चलो 1-2 महीने लेट आ गया, देन बच्चे को क्रॉलिंग करना जरूरी है,
कई बच्चे मिस कर जाते हैं, कई बच्चे बैठ के और अपने आप को ऐसे थोड़ा सा हॉप कर करके करते हैं. सो दैट इज अगेन इट्स अ रेड फ्लैग. ओके, बिकॉज दिस क्रॉलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो बच्चे करना चाहिए. ओके, बिकॉज इट्स alternate bilateral movements. ओके, तो यहीं से ही हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है कि बोथ साइड ऑफ द ब्रेन. यस, सो दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग. देन क्रॉलिंग कर लिया, उसके बाद बच्चे ने अगर स्टैंडिंग अचीव नहीं की अराउंड 10 months 11 months, दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग फॉर द पेरेंट. 1 year में स्टैंडिंग, वॉकिंग, देन अगेन जंपिंग, stair climbing up and down and running one leg. So this is all the physical development of a kid. यहाँ पे कहीं पे डिले हो गया, that means कुछ गड़बड़ है. Then again social and emotional development of a kid, कि बच्चा 1 month में अपनी मम्मा के साथ एक आई कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट करता है विद द मदर. 1 month में वो स्टार्ट हो जाता है. देन 3 months बच्चा सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है पेरेंट्स को. और के बाद धीरे धीरे अगेन वो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे ही आप उसको आवाज लगाओगे वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है. धीरे धीरे टॉयज के साथ खेलना, एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करना, उसको बीच में लेकर आना, मिड लाइन होल्डिंग लाइक दिस. एंड दिस इज ऑल अगेन. और अगर किसी बच्चे ने ये सारी चीजें अचीव नहीं की अराउंड 6 months, then again it's a red flag for the parent. ओके, सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बच्चे का एक टाइम पे अचीव करना, बिकॉज 1 month till 1 year इट्स, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है. आपको पता चलता है आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कितनी हो रही है. अगर वहां पे कहीं डिले जा रहा है, देन इट्स अ रेड फ्लैग. देन धीरे धीरे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में कि बच्चा 6 months में 8 months में वो थोड़ा बैबल करना स्टार्ट कर देता है. उसके बाद वो थोड़ा एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, मम्मा पापा, मम्मा को बोलना स्टार्ट, बाबा, ऑल दैट साउंड्स बना, कुछ ना कुछ साउंड करता रहता है. लेकिन अगर वो सब नहीं आया है, देन इट्स अ रेड फ्लैग. और कई पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मे बी आ जाएगा, हम थोड़ा लेट बोले थे, उसके फादर थोड़ा लेट बोले थे, तो वी आर वेटिंग. यू कैन वेट. अगेन आई एम सेइंग, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग अलग रहती है, तो उसके बेसिस पे यू कैन जस्ट सी. बट डोंट नेग्लेक्ट, ऐसा नहीं, कीप मॉनिटरिंग. आपको मॉनिटर करना है. अगर आपने देखा है कि मेरा बच्चा नेम कॉल रिस्पॉन्स नहीं है, तो और वो नहीं मेरी आवाज को रिस्पॉन्ड कर रहा, नहीं आई कांटेक्ट मेरे साथ मेंटेन कर रहा, देन यू कैन, आप सोच सकते हो कि अभी नहीं कर रहा, बट कीप मॉनिटरिंग. उसको मॉनिटर करते रहना है कि अच्छा अभी नहीं किया, चलो अच्छा 1 month डिले हो गया बट आया है. अगर नहीं आया है, डोंट वरी, go and consult your and professional and go for the screening. Then after doing that evaluation assessments, आ जाएगा, कुछ भी आएगा that okay, this is something wrong with the kid, there is some delay with the kid, there is something, then don't worry, don't get panic कि मेरे बच्चे को ये हो गया है, वो हो गया है. You have to just have patience, थोड़ा सा ध्यान से कि हुआ क्या है, अब मेरे को उसको कैसे करना है, मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करना है. If that milestone is not there, we have to initiate, we have to work. Okay, or अगर something is wrong, something is abnormal, then just try to correct that. So early diagnosis is very important. Yes, तो जितना जल्दी पता चले, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, उतना बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है. Yeah, that one point you said is very right, that early diagnosis is important. तो उसके लिए कभी कभी यही चीज होती है ना कि आ जाएगा, हो जाएगा, मतलब बच्चे में it will happen. But what's wrong in just going once and getting it checked? अगर डॉक्टर ने बोला सब सही है, then we are तो relieved only, like हमारे लिए तो अच्छा ही है. But if it's something, then we'll come to know it early before it's too late. Because कभी कभी ना कि कभी कभी बच्चों के
बच्चों के केसेस में ज्यादा होता है कि बहुत लेट टाइम में आते हैं, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फ्रॉम आवर साइड एज अ प्रोफेशनल। वी ट्राई आवर yes, लेवल बेस्ट बट इट गेट्स yes, डिफिकल्ट, बिकॉज तब तक yes. उसका माइंड फ्रेम हो गया है, माइंड इज, यू नो, इन द इनिशियल ईयर आप बोल रहे हो कि माइंड इज डेवलपिंग, बट वंस इट स्टार्ट्स, इट मेंटेन्स अ हैबिट, उसके बाद उसे बदलना बहुत डिफिकल्ट हो बहुत जाता एग्जैक्टली एग्जैक्टली. है। सो एग्जैक्टली। वही है, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, जितना जल्दी आप इंटरवेंशन करेंगे प्लान, उतना जल्दी लॉन्ग टर्म इश्यूज जो उसके साथ एसोसिएट होने वाले हैं, वो हम उसी टाइम पे कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. राइट। सो दैट विल रियली हेल्प. राइट, बट द थिंग इज, ये जो माइलस्टोन डिले था ना, तो इस पे मेरे, ये दिस वाज अ वेरी पर्सनल, वेरी इंडिविजुअल क्वेश्चन ऑफ माइंड, कि मैंने ना आजकल मतलब बहुत देखा है, यू नो, द थिंग इज, अभी जैसे कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो पियाजेट के स्टेजेस पढ़े थे, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम डिस्कस करे तभी बोला कि आजकल बच्चे पियाजेट के स्टेजेस के पहले ही आगे आ रहे हैं, मतलब उसने बोला कि वो 2 साल बाद बोलना सीखेगा, आजकल बच्चे 6 महीने में दे स्टार्ट सेइंग समथिंग समथिंग, and he said Yes. that, you know, the concept and everything is everything after the pre-operational stage, the concrete, everything is later on, but abhi it is so early that the kid is knowing that this is a ball, this is a dog, this is eyes, this is Yes. yours. So what do you think, matlab, is it that the parents are like, jaise ki parents bane naye naye, so they want that their child should learn ki, you know, 1 2 3, I have been this is happening to me, like, you know, right now I'm new in this field, so wherever I go as to and see a new child, the parent will be first like, चलो रीति को ये करके दिखाओ, 1 2 3 बोल के दिखाओ, तो child will start doing 1 2 3 4, so the child will learn it before its age. Do you think Yes. this is affecting the milestone development? Is it something like that? It's see what being a new parent exactly. एंड आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं ना कि उनको आप एक बारी में कुछ भी बताओगे, दे विल स्टार्ट पिकिंग अप, वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं. Right. और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पता होता है कि दे आर लर्निंग फास्ट, सो क्यों ना मैं इसको ये भी करवा दूं. सो बट द आप बच्चे को उसके पेस के अकॉर्डिंग ही लर्न करने देना चाहिए. बट यस, अगेन, इफ the kid is learning, then, and if the kid is learning very fast, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. बट yes, being a parent, आप उसको ये मत बोलो कम सिट एंड लर्न, वो चीज हम नहीं कर सकते. वो इतना छोटा बच्चा है कि अभी उसका मूड है, वो आएगा, बुक लेकर आपको बोलेगा कि रीड इट, शो मी, इतना उसमें इंटरेस्ट होगा, और आप उसको उस टाइम पे करवाएं, दैट इज, वो हेल्पफुल है, वो उसके Right. ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अदर देन कि वो कुछ खेल रहा है, आप उससे वो लेके बॉल से खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, कम सिट, हमें ये करना है, शो मी योर हेड, टच योर नोज, टच योर आईज. सो वो आपको नहीं. बीइंग अ पेरेंट, आई नो कि बहुत डेस्परेशन रहता है पेरेंट्स में कि अरे मेरे बच्चे ने तो ये आता है, उसने बताया मेरे को कल, आज भी, आज हम कुछ नया सीखते हैं. नो, तो अभी थोड़ा सा प्लेफुल मैनर में लेट देम लर्न. आप उसके साथ इन्वॉल्व हो, वो जो भी खेल रहा है, जस्ट ट्राई टू, यू नो, आप प्रिटेंड प्ले साथ में करो, Right. रियल चीजों के साथ को बताना स्टार्ट करें. Nowadays, lots of apps are there. 0 to 6 months, 6 to 12 months, 1 year to 2 year, 2 to 3 years, lots of apps are there. So instead of using that apps and screen time, उसको बिल्कुल भी नहीं देना है. उसके अलावा आप बच्चे को बुक्स लेके बैठो, पिक्चर्स लेके बैठो, उसके टॉयज के साथ खेलो, रियल चीजें उसको दिखाओ, रादर देन गोइंग फॉर स्क्रीन टाइम. अगर इस तरीके से सिखाएंगे, यस, इट्स गुड इन अ प्लेफुल मैनर, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा भी. बट यस, यू कांट फोर्स देम, लर्न, सिट, टेल मी, यू हैव टू टेल मी. कल तो सिखाया था, आज ये आए हैं, आज तुम इसके सामने बोल ही नहीं रहे हो, व्हाट हैपेंड, कल तो ट्विंकल ट्विंकल कर रही थी रात को सोते हुए, अब क्या हो गया. सो लेट देम लर्न एट देयर ओन पेस. Right.
बट द थिंग इज पोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नो, ये मैंने पहले भी अपने पेज पे बोली हुई है कि बच्चों को स्क्रीनिंग टाइम देना जब उनकी एज से पहले देना उनके डेवलपिंग ब्रेन पर बहुत गंदा इम्पैक्ट कर सकता है। एंड एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर सेइंग इट, इट इज आल्सो थोड़ा इट्स वेटेज इज इंक्रीजिंग, बिकॉज डेफिनेटली आपको भी पता है कि जब ब्रेन डेवलप हो रहा है तब आप उसको स्क्रीनिंग टाइम दे रहे हो, इट इज एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। Yes, yes. एग्जैक्टली। They will सो see they are fully on the screen, right? So they हाँ, can't speak. वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको मजा आ रहा है। हाँ, जैसे अगर आप बुक में ही वो रीड करके एक बारी पोएम उसको बोलोगे, देन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग। लेकिन राइट। उसको आराम से स्क्रीन पे दिख रहा है, मिल रहा है, एक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ राइम के साथ, तो वो क्यों अपना मुंह खोलेगा? देन उसको मजा आ रहा है। So this is the Yeah. thing. So No it screen. is kind of you're only compressing your child's efforts. Like वो efforts नहीं कर रहा है अपना अपना express करने को. Let him do that expression करने के लिए, you give him the space to do that express. Okay. Yes. अभी इसके बाद ना ये एक चीज है कि पेरेंट्स में फ्रॉम दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट्स की, अभी जैसे कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रंस, ओके, न्यूरोटिपिकल एंड न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रंस, तो जब न्यूरोडाइवर्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि उनमें सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। दे आर बिग इनफ बट दे आर नॉट एबल टू लिसन टू द पेरेंट, एक बार सुना, दो बार सुना, 10 बार सुना, बट नहीं समझ आ रहा है। and then the parent feels कि unknown about the situation of the child, the parent feels कि यार मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहा है, और तब दो तीन लगा देते हैं, and then the child is like, child is going through something himself. I don't know, that will be your thing, that is the child is also having some internal battle within himself कि वो बोल नहीं पा रहा है, that is frustrating him also somewhere. So, what do you Exactly. think when the parent becomes frustrated and aggressive towards the child? Is it having an adverse effect over the mental health of the child? एग्जैक्टली, इट्स लाइक अभी बच्चे को खुद भी नहीं पता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मी। अभी वो बच्चा ट्राई कर रहा है। अभी पेरेंट्स को क्या होता है, एक बारी बता दिया, दूसरी बारी बता दिया, तीसरी बारी दे आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चा बताए, लेकिन बच्चा नहीं बता पा रहा है। ऑब्वियसली पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन लेवल वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसमें वो बच्चों को एक आधा लगा भी देते हैं। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और बच्चे को मारने पीटने से बेटर है यू हैव टू रूल आउट द कोर कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है कि शी इज टेलिंग मी टू राइट समथिंग, शी इज टेलिंग मी टू रीड समथिंग, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके अलावा भी दैट एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर थिंग्स विल आल्सो कम। ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दैट इज देयर कि अच्छा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उसके साथ साथ और चीजें भी एड ऑन होती रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करने से और वो बाकी चीजें उसको डांटना करने से, उसकी प्रॉब्लम को समझें कि वाई क्यों कर रहा है ये चीज। एज एक मूवी आई थी तारे जमीन पे, Yeah, जिसमें ईशान ने, ही इज बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना कि उसकी स्ट्रेंथ भी थी, बट वो राइटिंग रीडिंग में इतना इश्यूज था। मदर तो थोड़ा समझने की कोशिश करती थी, बट अगेन बीइंग अ मदर एक्सेप्टेंस नहीं आता कि नहीं मेरे बच्चे में नहीं हो सकता। बट फादर्स का तो निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन कि नहीं क्यों नहीं कर रहा है, इसको करना पड़ेगा, ये कर क्यों नहीं रहा है, इसको करना। सो उसमें देखो इतना क्लियरली बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया गया था कि उसमें अगेन डिसलेक्सिया, रीडिंग राइटिंग इश्यूज और फाइन मोटर इश्यूज, ही वाज नॉट एबल टू टाई द शूज, ही वाज नॉट एबल टू बटन नहीं लगा पाता था, all that fine motor issues, he was having visual issues कि उसको visually blackboard से copy करने में problem था, उसको visual issues थे कि उसको lines नहीं पता चलती थी कि लिखना कहाँ पे है, yeah. कितना लिखना है, हाँ साइज की कहाँ पे, तो वो visual perception ही नहीं था। सो इंस्टेड कि उसको डांटना करना है, उससे बेटर उसकी प्रॉब्लम समझे कि अगर ठीक है उसको ब्लैक बोर्ड से नहीं समझ आ रहा तो गो फॉर सम आई टेस्ट। अगर आई टेस्ट में भी सब कुछ नॉर्मल आया है, देन जस्ट थिंक समथिंग रिलेटेड टू विजन, विजुअल, कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू कॉपी फ्रॉम अ बोर्ड, दैट इज विजुअल परसेप्शन इश्यूज।
Okay, so Right. just rule out the core of that problem instead of अपने आप को भी परेशान कर रहे हो और बच्चे को भी परेशान कर रहे हो. Exactly. So So, but that should be. the thing which you're saying about ruling out the problem, अभी rule out करना, and the first of all, secondly ये बात साइड में रखते हैं. पहली बार आपने जो बोली एक्सेप्टेंस की, ये बात Yes, मैंने खुद ने फेस करी. मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ बच्चों में, जो अडल्ट में भी आज मेंटल हेल्थ का, कि वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट मेंटल हेल्थ, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आया है. बट इट इज yes, कमिंग, पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, पीपल आर गेटिंग learned about it, and it's coming, it will come gradually. So ये चीज होती है ना कि नहीं मैम, एक्चुअली वो ना बहुत आलसी है, इसलिए वो नहीं कर रहा है. करना आता है उसको, बट वो आलस दिखा रहा I'll, है, या yeah, फिर वो ना yes, नखरे कर रहा है, वो आपको देख के ज्यादा कर yes, रहा है. मे बी, exactly. मतलब but Hmm. children have this thing of tantrums to share Yes, thing and yes, everything, but showing exactly. tantrums is also a response, is also an Ex- answer to some behavior, you know. Yes, तो अगर वो yes, एक्सेप्टेंस आ गया, बट नाउअडेज आई हैव बीन कमिंग टू दिस वर्ड थेरेपी शॉपिंग अ लॉट, यू नो. एक थेरेपिस्ट से दो, दूसरे थेरेपिस्ट से तीसरे थेरेपिस्ट से. आपने जैसे बोला कि विजन का हमने अगर एग्जांपल ले लिया, so there's now OT तो है, occupational therapy is something which is from ages, like now it is like in the history. Okay, that become a yes, history. But अभी नए नए आ रहे हैं कि ऑडियो थेरेपिस्ट, विजन थेरेपिस्ट, सेंसरी थेरेपिस्ट. So my, yes. as a parent, I'll be always, I've seen these parents ना, I'll take my child everywhere, मैं सारी जगह लेके जाऊंगी, मैं उसको क्योर कर दूंगी, it will be in a year, सब Yeah. एक साल में ठीक हो जाएगा. What do you think about this? See, that is again after getting proper diagnosis. Diagnosis एक बारी बच्चे का आपको पता चल गया कि this is the problem, मेरे बच्चे को ये problem. First of all, yes, this is very important. You have to accept that. कि वो एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है कि ओके दिस इज द थिंग. ओके, मेरे बच्चे के अंदर ये पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू वर्क Oh, अप्रोप्रिएटली, right. नॉट राइट. तो इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, वो तो है, उस पे तो काम करना ही है, लाइक इंटरवेंशन उसको उसके लिए देना है. बट यस, यू हैव टू उसका ये देखो कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, उसको लेके आप आगे चलो. देन अगेन उसके बाद थेरेपीज के लिए आप जा रहे हो. वंस यू विल गेट गुड थेरेपिस्ट, आपको वहां पे उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना फेथ दिखाना है. थेरेपिस्ट इज देयर, वो बैठे ही हैं आपके बच्चे को ठीक करने के लिए. ठीक, मैं ये नहीं कहूंगी कि दैट डिपेंड्स, इट्स अ कंडीशन कि कितना उस बच्चे के अंदर अगेन पॉजिटिव थिंग्स की उसको लेके हम उस बच्चे के साथ कितना आगे तक जा सकते हैं, कितना इम्प्रूव हो सकता है बच्चा, वहां पर ही हमारा वो राइट. तो क्वेश्चन आ रहा है मैम, दैट यू ट्रस्ट. नो. मैं जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तब वो क्वेश्चन आता है ना कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा. आप मेरा एग्जैक्टली बच्चा, वही एड्रेस कर रहे हो. एग्जैक्टली. सो बिकॉज ये मैंने अपने इतने एक्सपीरियंस में मैंने हर पेरेंट से मैंने सिर्फ एट द एंड ऑफ द असेसमेंट, एट द एंड ऑफ द सेशन, एवरी टाइम आई एम, मेरे को ये वाला क्वेश्चन सुनना, मतलब अब वो बोलते हैं उससे पहले ही मेरे को बोलना पड़ता है. आई नो कि अब आप क्या पूछने वाले हो, तो इट्स लाइक मेरा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा. सो और मैं हर बारी हर किसी को यही बोलती हूँ कि दिस इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है कि आपको मैं बोलूं कि ये एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, आप ये एक हफ्ते का कोर्स पूरा कीजिए और ये ठीक हो जाएगा. नहीं, इट्स अ कंडीशन, ये कंडीशन है. एंड दैट वेरीज, अगेन मैं बोलूंगी कि बच्चे अलग अलग बच्चे होते हैं, हर किसी को अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग इश्यूज हैं. ओके, तो इट डिपेंड्स कि बच्चा कितना रिस्पॉन्ड करते हैं थेरेपीज को, कितनी जल्दी आप आए हो. अगेन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग अर्ली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है. जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी वो यू नो एक माइंड में रजिस्टर करना स्टार्ट कर देता है. ओके, आई हैव टू डू लाइक दिस, ओके दिस इज समथिंग गुड, और बच्चा भी अच्छा फील करना स्टार्ट कर देता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द किड कंडीशन. कि अभी मैं बोलूं कि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, जितने बच्चे आते हैं, हर बच्चे का है कि कोई बच्चे 2 दिन में उन्होंने इम्प्रूवमेंट शो किया है, किसी ने 2 महीने में इम्प्रूवमेंट शो
किया है, किसी ने 2 साल में इम्प्रूवमेंट शो किया है. तो दैट वेरीज. अगेन पेशेंस. बच्चे का अलग अलग क्या. यस. कि ड्यूरिंग, अगर हम बोलते हैं 1 to 5 years ऑफ एज ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें आप जितना करवा सकते हो करवा दो, बट इट्स समथिंग लाइक इट कीप्स ऑन. जितना बच्चा सीखेगा रिपीटेडली, अगेन दैट प्रैक्टिस जितना वो करेगा, वही ब्रेन चीज है. उतना ही ज्यादा या नहीं, द तो थिंग इज, प्रोग्रेस आपने जो करना बोला ना स्टार्ट कि करता जितना है. करवा सकते हो करवा लो. आई हैव सीन पेरेंट्स मेकिंग देम लर्न एज many लैंग्वेजेस एज दे कैन. मतलब बच्चों को यस. लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं कि तुम यस. पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट एटलीस्ट मेक हिम रिवाइज इट. रिवाइज किए बिना तो सब बोल रहे हैं ना कि सब कुछ भूल जाएंगे. वही चीज है. तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हेल्पिंग देम कि एक बार ही करवाने पे नहीं आएगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू फेथ रखो अपने थेरेपिस्ट पे कि वो जो भी करवा रहा है आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए करवा रहा है. एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा. इट टेक्स टाइम. आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं आप एक हफ्ते के लिए यहाँ चले गए, जी हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, इम्प्रूवमेंट तो कुछ है ही नहीं है, तो हम कहीं और जा रहे हैं. सो दैट विल इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, पेरेंट की भी और बच्चे की भी, एंड अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम. एग्जैक्टली. तो तो अलोंग विद दिस नो, लाइक आपने जैसे कि वेस्टेज ऑफ टाइम जो होता है, ये जो चीज होती है ना वो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा होता है. ये जो दो पॉइंट हमने किए कि वेस्टेज ऑफ टाइम, कि जब तक जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं कुछ भी जल्दी. करूं, एंड कब तक यस. होगा ठीक. ये दिस टेक्स देम टू वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड वेरियस ऑप्शंस कि हाउ टू गेट इट क्योर्ड. एंड यहाँ पर ही एक ऑप्शन आता है कि मेडिकेशंस, कि मैं अपने बच्चे को मेडिकेशंस दूंगी. आई विल गिव हिम सम काइंड ऑफ टैबलेट्स और सम काइंड ऑफ मेडिसिन. मैं किसी भी मतलब बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट से मिलूंगी, मैं दूंगी और अपने बच्चे को ठीक कर लूंगी. बिकॉज थेरेपी तो होनी ही है, थेरेपी तो ठीक टाइम लगेगा होने में. बट डू यू थिंक दैट अ चाइल्ड्स माइंड हु इज जस्ट 5 years ऑफ एज, जहाँ पे इतना डेवलप हो रहा है ब्रेन, लेकिन बिकॉज ब्रेन भी उस टाइम पे इतना अनसर्टन होता है, और वहां पे दैट. हम एक आउट एक्सटर्नल टैबलेट दे रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस दे रहे हैं, इज इट नॉट गोना हैव एडवर्स इफेक्ट? नो. नो. यस. मेडिकेशन, मतलब यू हैव टू बिलीव कि थेरेपी से फर्क पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. तो उस टाइम पे अगर आप मेडिकेशन का सोच रहे हो, नो, बिग नो टू द मेडिकेशंस. बिकॉज अगेन दैट ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग, एंड वो मेडिकेशन से क्या होगा कि दैट इट विल डैमेज द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द ब्रेन. ठीक है, आपने उसको काम डाउन करने के लिए उसको दे दिया, अब वो ब्रेन तो सोता ही रहेगा, आपने उसको काम डाउन ही कर दिया है. दैट प्रोसेसिंग उसकी रुक जाएगी. उसका जो स्ट्रक्चर्स अभी जो जस्ट बन रहे हैं, वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा. लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर देयर. So please no to medication. Believe in therapies. Therapies take time, but yes, बहुत जल्दी कई बार इससे आपको रिजल्ट भी दिखेगा. दैट अगेन डिपेंड्स कि बच्चे की कंडीशन पे, बच्चे की इश्यूज क्या क्या है, उन सब चीज के लिए थेरेपीज हेल्प करती है. या नो एंड वही मेडिकेशन. बच्चों की जो थेरेपीज है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ किड, लाइक बच्चों की थेरेपीज से आज पता चला यस. है कि अडल्ट्स में भी थेरेपी, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अडल्ट्स में भी शो आउट हो रही है. वरना अडल्ट्स के लिए पहले मेडिकेशन थे. एंड आज अडल्ट्स की ऐसी काफी बीमारियां हैं, यू वुड ऑल्सो अग्री टू इट, कि जहां पे मेडिकेशन के बिना कुछ सोर्स नहीं है. इट इज वेरी important to give medications, and in adults I would say that their brain is strong enough टू टेक दैट वेटेज. तुम अगर मतलब वैसा ही है ना, कि मतलब बच्चा उतना स्ट्रांग है ही नहीं, लेकिन तुम उस पर भार डाल दो. इट्स ऑब्वियसली. अभी उसका ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग. दैट्स व्हाट आई सेड कि या अभी अभी वो डेवलप ही हो रहा है. अभी उतनी सारी चीजें तो आई नहीं है. अगर मेडिकेशन देके आप उसके उस एरिया को, विच दैट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फंक्शनिंग, तो आप उसको काम डाउन कर रहे हो, आपने उसको सुला के रख दिया है, तो वो कैसे डेवलप होगा?
एडल्ट के केस में द ब्रेन इज लाइक पूरा डेवलप हो चुका है, राइट? Right. और वो बहुत सारे उसके अब इतना डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइक हम कहें कि हमें जो चीज इम्प्रूव करवानी है वो नहीं हो पा रही है, then that again depends Exactly, adult depends on to the situation. हम जब yes, बच्चों के point of view से yes, बोल रहे हैं, then please a very big no to medication, because exactly, something is really getting developed and you cannot just intact or hamper that function just to get your motive done. कि नहीं मेरे को ठीक yes, करना है. You're not getting it done. You're just going more towards the very bad part of the side, you know. yes, Whereas in yes, adults, I would say that medication and therapy goes hand in hand. दोनों अच्छे से and जाते हैं. Because yes, you know, again on situation की adults की situation अलग है, बच्चों की situation अलग है. yes, Exactly. But with this, you know, Pari, like we had a very healthy discussion on awareness of mental health in children, and I am like too much excited for the audience to see this. And one more time, thank you so much for coming on board on my page. It is such a great privilege for me. Thank you so much, Pari. thank you so much, Ayushi. Yeah, Okay, so the thing is, if any other time we'll need you, like for any kind of discussion on some special ed of children's, we will bother you again. So yeah, please, no, anytime, please come and help anytime. us out. Okay. Yeah, Okay. sure, sure. Yeah, Thank you so thank much. And I would okay, yeah, request you to, you know, you can share your number or your some kind of emails with me, so we can yeah, put it in the description. So if someone wants to reach out in Bangalore or some online therapy, they can reach out to you. yes, sure, sure, Okay. Ayushi. Yeah, Thank you so thank much. you. Okay.